Hi everyone, today we're doing the chapter 16 from Lippincott, which is about fatty acid, triacylglycerol, and ketone body metabolism. So starting off with the overview, we all know that fatty acids they can exist either in their free form or in a form of complex molecules. So what are these two forms? One is the non-esterified free fatty acid form, so let me just remove this word so that it doesn't confuse you. But this word fatty acids exist free in the body. This means that they're free in regards to their will. They're free to roam wherever they want. So they exist in the body in two forms. They can either be non-esterified, and non-esterified is free fatty acids, or they can exist as fatty acyl esters. And what is the version of their version of fatty acyl esters? Tags, right? Now, let me clarify this line particularly for you, fatty acyl esters. So I told you this is glycerol, and if you talk about tag structure, and then you'll have three fatty acids. So triacyl glycerol. So triacyl, these are three acyls. So these are three fatty acyls and glycerol. And the bond that is here between the glycerol and each fatty acid, that's an ester bond. Which bond is that? That's an ester bond. So they have been basically esterified. So when you talk about fatty acyl esters. So these are fatty acyl, and these are esters. So the esterified version is of tags, which is fatty acyl esters, and non-esterified is the free fatty acids if they are alone. These are free fatty acids, right? So they can exist in either of these two forms. Now, free fatty acids they exist in substantial amount throughout the body, but when you talk about in the fasting state, that's the time when you'll find that maximum amount is present in the serum, in your plasma. Uh, so what am I saying? That free fatty acid are found in substantial amount, especially during fasting. And why is it so? That's because when the body is fasting, what happens is that the glucose level is very low because you're not eating any carbs, you're not getting any foods, your glucose is very low. So, in order to combat this deficiency of glucose, and obviously the body needs energy somehow and from somewhere, and when there's no glucose that you can extract energy from, the body resorts to fatty acids. So, fatty acids they're mobilized, and you'll find a lot of them in serum albumin, in your serum, in your plasma, blood plasma, and that's the reason that substantial amount is found in the plasma during fasting. Otherwise, you can find a normal amount in available in tissues at all times, right? But particularly during fasting, you will find that there is a substantial amount that exists. Now, the second thing that I have to talk about is you should never forget a very important compound, which is albumin. I'm sure you already know. Now, if anyone asks you what is the role of albumin, so albumin is basically a transport protein that helps to transport the free fatty acid. So free fatty acid, it cannot travel or roam around in blood on its own. It needs something to carry it. So what is that something? That's albumin. So albumin बहुत important है. ये क्या करता है? ये free fatty acids को carry करता है around in the blood. और उसके अलावा दूसरी बात very important जिसमें है कि if you talk about the transportation, so वो तो एल्यूमिन से हो गई, लेकिन origin और इसका point किधर है जहाँ इसने जाना है finally, what's the point of consumption? तो जो आपके फ्री फैटी एसिड्स हैं दे ओरिजिनेट वेयर एग्जैक्टली, तो फ्री फैटी एसिड्स एक तो आपके जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उसमें आते हैं, ठीक है, उसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके अलावा भी उसमें इनका ओरिजिन होता है। और दूसरा टैग्स जो बहुत ज़्यादा आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर टैग्स होते हैं ना, उसमें से इनकी हाइड्रोलिसिस होती है और इसमें आपको फ्री फैटी एसिड मिलता है। तो ये ओरिजिन हो गया हमारा फ्री फैटी एसिड्स का। अब फ्री फैटी एसिड का यहाँ ओरिजिन तो हो गया, लेकिन ये इन्होंने जाना किधर है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन? तो इन्होंने फाइनली जाना है टू ऑल ऑफ द टिश्यूज। तो बाकी मोस्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी दे नीड फ्री फैटी एसिड, तो ये सारे उधर जाएंगे। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इसको मैं अभी टेक्स्ट से भी आपको एक दफा एक्सप्लेन करूंगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन इज व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट, दैट इज कि आपको दो चीजें याद रखनी है। एक है आपका लिवर, दूसरा है मसल। इन दो जगहों पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपकी फ्री फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। तो इफ दे आस्क यू कि फ्री फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन फाइनली किधर होगी, तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी आपके फ्री फैटी एसिड्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय मेनी टिश्यूज, दैट्स
another thing. लेकिन particularly liver and muscle, these help in the oxidation of free fatty acid. और liver में जब free fatty acid की oxidation होगी तो acetyl CoA बनेगा, और वो acetyl CoA further आपकी कीटोन, आपकी जो कीटोन बॉडीज हैं उनकी सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है। तो लिवर में वो जब फ्री फैटी एसिड की सिंथेसिस ऑक्सीडेशन हुई, उस ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए बना, वो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस में काम आएगा। और जो मसल में आपकी फ्री फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हुई वो आपको हेल्प आउट करेगी फॉर द एनर्जी। लेट्स रीड दिस फ्रॉम द ओवरव्यू। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड इज ट्रांसपोर्टेड ऑन सीरम एल्ब्यूमिन देयर इन रूट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टैग ऑफ एडिपोज टिश्यू और सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन्स टू द साइट ऑफ कंजम्पशन। तो टैग ऑफ एडिपोज टिश्यू से ये आपको मिलते हैं सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन्स, राइट? And they go to most of the tissues. They can be oxidized by many tissues, particularly liver and muscle, to provide energy. Muscles से energy मिलती है, और liver में to provide सबस्ट्रेट फॉर कीटोन बॉडी। और वो सबस्ट्रेट क्या है? वो सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोए, व्हिच इज दैट सबस्ट्रेट दैट्स एसिटाइल कोए। अब उसके बाद फैटी एसिड्स दे आल्सो दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है स्पेशली मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर, जिसमें मेम्ब्रेन लिपिड्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फॉस्फोलिपिड्स का भी अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा। सो ये आपकी पोलर कैप होती है, और नीचे यू विल हैव द हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि फैटी एसिड्स होती हैं। उसके बाद there are also precursors of hormone like prostaglandins. अगर आप देखें तो fatty acids are also precursors of hormone like prostaglandins. तो prostaglandins के भी ये precursors होते हैं। particularly कौन सा fatty acid? एरिकिडोनिक एसिड जो है। उसके अलावा fatty acid की मेटाबॉलिज्म में, या अगर आप कह सकते हैं लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में कोई भी मसला आएगा, that will lead to obesity, diabetes and atherosclerosis. हमने already we've studied that previously. Now, when you talk about fatty acid का structure, so fatty acid का structure है, it consists of a hydrocarbon chain and a carboxyl group. जो carboxyl group है वो hydrophilic है, that is water loving. ये charge है इसमें, देखिए this is polar, क्योंकि ये anionic इसका group है, तो इसमें charge है तो ये polar है, तो ये water को attract करेगा, so this is hydrophilic, so this is water loving. And what is it called? It's called carboxyl group. So this is carboxyl group, and this is hydrocarbon chain. हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, तो ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। तो कोई भी पूछेगा यू कैन सी ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है और कार्बोक्सिल ग्रुप है, सो डू नॉट फॉरगेट what is the structure. It has a carboxyl group and it has a hydrocarbon chain. Now a fatty acid consists of hydrophobic hydrocarbon chain with a terminal carboxyl group. तो ये terminal end है, इसका terminal end ये है। उसके अलावा जो anionic group है, obviously that has affinity for water, that's the reason it is this part is polar and hydrophilic, this part is hydrophobic. Why is this hydrophilic? Because it has affinity for water. Why does it have affinity for water? Because it is polar. It has a charge, anionic group है ना इसमें, जिसकी वजह से ये पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्फीपैथिक इन नेचर। व्हाट इज एम्फीपैथिक मीन्स? इट मीन्स कि इसका दोनों, एक पोलर एंड है और एक नॉन पोलर एंड है, या इन अदर वर्ड्स इसका एक हाइड्रोफिलिक एंड है और एक हाइड्रोफोबिक एंड है। तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स इनके। अब these molecules are highly water insoluble and must be transported in circulation in association with a protein. What is that protein? Albumin, that we know right now. और cause अगर इसका थोड़ा सा भी part insoluble हुआ या hydrophobic हुआ तो ये completely hydrophobic हो जाएगा, right? So yeah, that being said, fatty acids, more than 90% of fatty acids found in plasma are in the form of fatty acid esters. तो जितने भी आपको मिलेंगे plasma में, they'll be in the form of tags or in the fatty acid esters, either tags, cholesterol esters or phospholipids. तो या दैट्स आल्सो वन थिंग कि प्लाज्मा में ज़्यादातर ये आपको टैग्स में मिलेंगे, क्योंकि जब काइलोमाइक्रॉन्स में थे ये लोग टैग्स में ही थे, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड वेसल्स में आए और वहाँ लाइपोप्रोटीन लाइपेज पड़ा होगा, एपोसी2 होगा जिसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये टैग्स कन्वर्ट होंगे ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में। और उसमें से भी जो ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, टैग सिंथेसिस और बाकी आपका ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाएगा। और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनकी भी अपनी, या तो वो मसल्स में चले जाएंगे या डिपोज टिश्यूज में चले जाएंगे, या तो दे रिमेन इन द ब्लड। तो हाँ, लेकिन जो 90% है वो टैग्स वाली फॉर्म में ही होगा, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स में ये टैग्स में ही होते हैं, और वो काइलोमाइक्रॉन्स विल आल्सो कंटिन्यू इन द ब्लड। और जो फ्री फैटी एसिड निकल जाएगा वो एल्ब्यूमिन में स्टोर होगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्री फैटी एसिड कंटेन इन सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन, क्या लिखा है? फैटी एसिड एस्टर्स contained in circulating lipoprotein particles. So what are the circulating lipoprotein particles? I suppose they are chylomicrons.
अब उसके बाद you can also see chapter 18 for that. Free fatty acid transported in circulation in association with albumin. अब tags when they're transported in blood they are in the form of chylomicrons. ठीक है, लेकिन जब free fatty acid they're transported in blood they are with the help they're transported with the help of albumin. अब हमने सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लिया, अब उसकी बेसिस भी पढ़ लिया, अब फैटी एसिड की सैचुरेशन पे आते हैं। फैटी एसिड सैचुरेशन दैट मीन्स के लेकिन इधर भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, और में बॉन्ड हो सकता है या तो नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड इधर लिखा है ये, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड में देयर विल बी नो डबल बॉन्ड, सो देयर इज नो डबल बॉन्ड दैट्स सैचुरेटेड। और अगर वो अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें डबल बॉन्ड है तो इट कैन बी मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है डबल बॉन्ड, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो देखिए इट कैन बी पॉली अनसैचुरेटेड आल्सो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Oh God, what happened to me? Why do I look dyslexic? Polyunsaturated fatty acids. अब जब भी एक डबल बॉन्ड इंसर्ट होगा तो एक बेंड आएगा, ऑब्वियसली दिल बी अ किंग, क्योंकि डबल बॉन्ड का काम ये होता है कि बेंड लेके आना। और डबल बॉन्ड आपके पास दो टाइप्स होते हैं, या तो आपका सिस हो सकता है या तो आपके पास एक ट्रांस डबल बॉन्ड होता है। तो यूजुअली हमारे पास सिस होता है, ठीक है, सॉरी हमारे पास यूजुअली, मैंने गलती से ट्रांस को सर्कल कर दिया, यूजुअली हमारे पास सिस होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट फैटी एसिड, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये तो याद भी नहीं रहेगी, बट स्टिल इट वाज माय जॉब टू टेल यू गाइस कि हाँ है प्रेजेंट सिस वाला। अब फैटी एसिड की लेंथ, ये दिस चार्ट इज आल्सो, अच्छा ये देख लेते हैं इसको, फिगर को। दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, you have a saturated and unsaturated fatty acid. ये इसमें मैं दिखा क्या रही हूँ, मुझे खुद समझ, अच्छा ओके ओके, एक्चुअली ये लाइन दिख नहीं रही। तो ये सैचुरेटेड है हाँ ऑब्वियसली बिकॉज इट्स कम्प्लीटली स्ट्रेट, और ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि देयर इज अ किंग, सो अनसैचुरेटेड, और वो भी सिस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और दूसरा ये इसका कार्बोक्सिल एनायनिक ग्रुप है व्हिच इज हाइड्रोफिलिक, और ये पूरी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन है। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये फैटी एसिड जो कॉमन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये एक कार्बन वाला, ये एसिटिक एसिड दो वाला, प्रोपियोनिक एसिड तीन वाला, ब्यूटायरिक फोर वाला, कैप्रिक 10 वाला। जो 4 से 10 है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर फाउंड इन मिल्क ज़्यादातर। ठीक है, जो 4 10 वाले फैटी एसिड्स हैं, 4 से 10 तक जितने भी 4 से 10 वाले हाइड्रोकार्बन चेन वाले, 4 से 10 कार्बन वाले फैटी एसिड्स हैं, वो सारे देर फाउंड इन मिल्क। तो फैटी एसिड्स विद चेन लेंथ 4 to 10 आर फाउंड in significant quantities in the milk. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड पाल्मिटिक एसिड हो गया आपके पास, उसके अलावा palmitoleic acid, यहाँ क्या लिखा है, structural lipids and tags contain primarily fatty acids of at least 16 carbons. तो जो tags होते हैं, जितने भी structural lipids होते हैं, जैसे phospholipids या जो भी आपके membranous lipids होते हैं, जो lipid जो आपके membranes में लगते हैं, वो सारे एटलीस्ट उनमें 15 से ज़्यादा ही होने चाहिए। 16 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो एटलीस्ट 16 मिनिमम है, तो 15 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 16 से ज़्यादा ही होंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट लिनोलीक और अल्फा लिनोलीक, अल्फा लिनोलिनिक। ठीक है, तो लिनोलीक और अल्फा लिनोलिनिक, इनमें क्या फ़र्क है, दोनों 18 वाले हैं। ठीक है, और स्टेरिक भी 18 वाला है और लीक भी 18 वाला है, तो ये भी 18 वाला है, ये भी 18 वाला है। लेकिन लिनोलीक में क्या फ़र्क है, ओलीक में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है, और ये जो स्टेरिक है ये तो सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एज फॉर स्टेरिक एज फॉर सैचुरेटेड, और ये 18 वाला है। ठीक है, और 18 एन एस, सो 18 एन एस दैट्स क्लोज रिलेशन। तो स्टेरिक एसिड 18, उसके अलावा ओलिक और 18, ओलिक एसिड जो है उसमें एक सैचुरेटेड, एक बॉन्ड है डबल बॉन्ड, दिस इज अनसैचुरेटेड। फिर ये मोनो अनसैचुरेटेड है, ये डाई अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, इसमें तीन हो गए ना, ट्राई अनसैचुरेटेड बोलो, पॉली अनसैचुरेटेड बोलो। तो उसके अलावा एक सेकेंड, आई वाज रिकॉल समथिंग एल्स। तो अब इसमें दो डबल बॉन्ड्स हो गए लिनोलिक में, अल्फा लिनोलिक में तीन डबल बॉन्ड्स हो गए एट द पोजीशन 9 12 और 15। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है लिनोलिक और लिनोलिनिक, ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, यू हैव टू कंज्यूम देम इन द डाइट, सो एसेंशियल विद रिगार्ड्स टू डाइट, दे एसेंशियल विद रिगार्ड्स टू डाइट कि आपको डाइट्स में लेना पड़ेगा ये दोनों आपके फैटी एसिड्स, लिनोलिक और अल्फा लिनोलिनिक। और ये कितने कार्बन वाले हैं, 18 कार्बन वाले हैं। मोनो और डाई और ट्राई अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड बोलते हैं इनको, PUFA। सो दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, राइट। और उसके अलावा एरिकिडोनिक एसिड ये प्रिकर्सर है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, दैट वी नो। अब इसको मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ इस पूरे चार्ट को, वैसे तो पढ़ा ही दिया बट द नंबरिंग, राइट।
सो दे आर सेइंग दैट ह्यूमंस में मोस्टली हमारे जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 20, ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं बॉडी में ज़्यादातर, जो इवन नंबर वाले हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकली ज़्यादा वही प्रेजेंट है। दूसरा जो फैटी एसिड्स विच आर ग्रेटर देन 22 क्या कहते हैं उन्हें, कार्बन्स वाले, जो 22 कार्बन से ज़्यादा हैं, जैसे अभी एराकिडोनिक एसिड के बाद जितने भी हैं, जो 22 कार्बन से ज़्यादा हैं उनमें, वो सारे फाउंड इन द ब्रेन। सो 22 कार्बन वाले या उनसे भी ज़्यादा लॉन्गर फैटी एसिड्स, so long chain fatty acids are found in the brain. That's one thing that you need to know. उसके बाद जो कार्बोनाइल कार्बन है, अब इसकी नंबरिंग को कैसे देख सकते हैं हम, अगर आप फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर देखो तो ये हो गया आपका कार्बोनाइल, नहीं कार्बोनाइल, हाँ ये ही है आपका कार्बोनाइल कार्बन। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी समथिंग एक्चुअली। हाँ ये आपके हाइड्रोकार्बन चेन है और ये आपकी कार्बोनाइल कार्बन है, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वन थिंग। चलो खैर जो भी है, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन ना, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फैटी एसिड है ना, तो देयर शुड बी अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड, सो व्हिच इज COH है ना। सो इसमें ये है कि ओके, सो जब आप फर्स्ट कार्बन को कंसिडर करते हो तो यू हैव टू सी दिस, एक्चुअली मैं देयर समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, बट खैर अभी आई एम थिंकिंग लेट्स गो विद द फ्लो। ये जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, तो जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होगा, दैट विल ऑलवेज बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट कार्बन। तो दिस इज वन वेरी कॉमन कंफ्यूजन कि समझ नहीं आता कि इसको पहला कार्बन बोले या इसको इग्नोर करें, फिर ये तो फंक्शनल ग्रुप है और आगे बढ़े और अगले वाले को फर्स्ट कार्बन बोले, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप है तो क्या, उसकी रेलिवेंस और उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी बाकी कार्बन की है, ये भी एक कार्बन है एट द एंड ऑफ द डे, तो उसको प्लीज इट्स ड्यू रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट कार्बन है, दिस इज वन वे फॉर यू टू रिमेंबर कि हाँ यू हैव टू consider that as something also, तो just consider it as one। तो ये पहला कार्बन हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, जो उसके अगला वाला कार्बन होगा सेकंड कार्बन होगा, जो उससे अगला होगा वो थर्ड होगा, तो उससे रिलेटिव आगे चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। अब जब वो पहला कार्बन तो हो गया, लेकिन उस कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा, उसका अगला जो कार्बन होगा, जिससे मैंने बताया कितने गई डायग्राम, ये वाली ना, उसके बाद ये अगला कार्बन जो है मैंने बताया, ये जो बिल्कुल इस कार्बन, ये तो पहला हो गया ना, उसका अगला कार्बन बिल्कुल ये सेकंड कार्बन होगा। इस कार्बन को वी कैन आल्सो रेफर टू इट एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप था COH, द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये पहला कार्बन होगा। तो जो दूसरा कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि इट्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द functional group. So alpha carbon also regarded as the carbon 2, so the second carbon or alpha carbon fatty acids में याद रखना कि when you're ever referring to, so carbonyl carbon, that's the first carbon, what was the second carbon? That's the carbon 2 is the alpha carbon, carbon 3 is the beta carbon, carbon 4 is the gamma carbon, and the terminal methyl group is called the carbon of the terminal methyl group is called the omega carbon। तो ये जब आपका खत्म हो जाएगा पूरा, तो ये आपका टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है दैट विल बी रेफर टू एज द ओमेगा कार्बन, तो इसका भी ये ओमेगा कार्बन, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये जो सेकंड है ये अल्फा कार्बन, जो थर्ड है वो बीटा कार्बन, जो फोर्थ है वो गैमा कार्बन। So if they ask you alpha carbon कौन सा, so it's the C2, बीटा कार्बन कौन सा, C3, ये भी that's one way for you to remember, वरना क्या अल्फा कार्बन तो वही होता है which is attached directly to the functional group, और ओमेगा कार्बन बिल्कुल जो एंड वाला कार्बन होगा ना, टर्मिनल एंड पर जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप का कार्बन होगा वो ओमेगा कार्बन है। अब जो एरिकिडोनिक एसिड है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम यूजुअली कहते हैं कि ओमेगा 6 खाओ, ओमेगा 6 खाना चाहिए, एग्स में ओमेगा 6 होना चाहिए। सो व्हाट्स दैट ओमेगा 6 दैट वी रेफरिंग टू? सो दैट इज एरिकिडोनिक एसिड। अब एरिकिडोनिक एसिड को ओमेगा 6 क्यों कहते हैं? इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, तो उसका एंड से जो टर्मिनल उसका जो है ना कार्बन, ये एरिकिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। लेट मी लेबल इट एज एरिकिडोनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन होते हैं, प्लीज हेल्प मी रिकॉल। इसमें 20 कार्बन होते हैं। अब एरिकिडोनिक एसिड का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 कार्बन हो गए है ना, ये पता चल गया आपको। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड दिस इज द सिक्स। सो जो सिक्स बॉन्ड पर है आपका डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड है वेयर इज इट एग्जैक्टली, इट्स एट द सिक्स कार्बन। तो सिक्स कार्बन पर जो डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज इसका जो आखिरी या टर्मिनल डबल बॉन्ड है वो 6 carbon away है from the carboxyl group, right?
So this will be referred to as omega 6. I did not phrase it well, so let's read it from the book. Arachidonic acid is referred to as an omega 6 fatty acid because the terminal double bond is 6 bonds from the omega end. So the terminal double bond is 6 bonds from the टर्मिनल एंड तो जो टर्मिनल हमारे पास एंड है द टर्मिनल ओमेगा एंड उससे 6 बॉन्ड्स अवे है हमारा डबल बॉन्ड एरिकिडोनिक एसिड का hence that's referred to as omega 6 so whenever they're talking about omega 6 what should come to your mind arachidonic acid और वो भी कौन सा वाला एरिकिडोनिक एसिड हाँ एरिकिडोनिक एसिड एक ही होता है 20 वाला लेकिन उसमें 4 ऑब्वियसली अनसैचुरेशंस होती हैं तो यस उसके बाद क्या है another omega 6 fatty acid is essential linolenic acid so बस अब सिर्फ यही नहीं है हमारा क्या कहते हैं ओमेगा 6 वाला लिनोलीक भी हमारा ओमेगा 6 है और जो लिनोलेनिक है वो ओमेगा 3 है क्योंकि इसका जो टर्मिनल जो होगा ना क्या कहते हैं इसे डबल बॉन्ड वो 3 कार्बन अवे होगा और इसका भी टर्मिनल वाला 6 कार्बन अवे होगा टर्मिनल डबल बॉन्ड तो वेन एवर एक्चुअली इसमें मुझे बुक में इसको प्रॉपर अभी मैं इसको करेक्ट करूंगी रेक्टिफाई करूंगी एरिकडोनिक एसिड और लिनोलीक एसिड जो इसेंशियल लिनोलीक एसिड है आपके इसेंशियल वाले कौन से थे दो ही थे एक लिनोलीक और लिनोलेनिक these are the only essential fatty acids out of the all तो एरिकिडोनिक और इसेंशियल लिनोलिक एसिड इन दोनों को आप ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलोगे तो जब ये ओमेगा 6 एक्स की बात होगी so it's not just referring to एरिकिडोनिक एसिड it's also referring to the essential लिनोलिक एसिड और जो लिनोलेनिक है अल्फा लिनोलेनिक वो होगा ओमेगा 3 so if you're eating omega 3 eggs हाँ उसमें फिर लिनोलेनिक होगा अल्फा लिनोलेनिक ओके एसेंशियल फैटी एसिड की बात हो गई ये हो गया हमारे पास लिनोलीक अब तो और ये लिनोलेनिक और लिनोलीक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ ओमेगा 6 एरिकिडोनिक एसिड तो लिनोलीक एसिड तभी ओमेगा 6 था क्योंकि ये इवेंचुअली ये खुद भी प्रिकर्सर है ओमेगा 6 एरिकिडोनिक एसिड का तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी अगर लिनोलिक एसिड नहीं है या लिनोलेनिक एसिड नहीं है अगर लिनोलीक एसिड नहीं है तो उस केस में ये भी एसेंशियल फैटी एसिड बन जाएगा अगर हमारे पास लिनोलीक की डेफिशिएंसी है सो एरिकिडोनिक एसिड बिकम्स एसेंशियल if linoleic is deficient in the diet so I hope that that makes sense now क्योंकि linoleic itself is the precursor of the omega 6 arachidonic acid and linoleic is also omega 6 I know I'm repetitively saying the same things repeatedly वही चीजें बार बार repeat कर रही हूँ but it's super important so that it sticks in your memory now, that is the substrate for prostaglandin synthesis. Yes, so eventually arachidonic acid is the substrate for the prostaglandin synthesis. And alpha-linolenic acid, which is omega-3, is the precursor for omega-3 fatty acids that are important for growth and development. And the dietary essentials in human because we lack the enzymes that can form carbon to carbon double bonds after the ninth carbon from the methyl end of the fatty acid. This is very important. तो ये क्यों essential हो गया out of nowhere ये वाले एक्चुअली ये सारे तो नहीं हुए एसेंशियल बस यही है लेकिन ये क्यों हो गया क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो कि डबल बॉन्ड बना सकें आफ्टर द नाइन्थ कार्बन तो सिर्फ नाइन्थ कार्बन तक ये हमारे डबल बॉन्ड्स बन सकते हैं लेकिन नाइन्थ कार्बन के बाद जितने भी डबल बॉन्ड्स आते हैं ना वो सारे उनके लिए एक अलग ही एंजाइम होना चाहिए लेकिन वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो फिर दीज आर इसेंशियल और जो 20th है इकोनॉमिक एसिड इसका फिर वो नाइन्थ वाले बाद वाले कौन बना रहा है नाइन्थ से बाद वाले जो डबल बॉन्ड्स है क्योंकि इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ लिनोलीक तो वो लिनोलीक ऑलरेडी बना लेते हैं जो बाहर से आता है फिर बॉडी अंदर बाकी वाले खुद ही जनरेट कर लेती है और एरिकिडोनिक एसिड बना देती है सो इन द वेरी केस अगर एरिकिडोनिक एसिड तब एसेंशियल होता है जब लिनोलिक एसिड खुद भी डेफिशिएंट हो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद दीस एसेंशियल फैटी एसिड्स तो हमें ये एसेंशियल फैटी एसिड्स कहाँ से मिलेंगे इन डाइट अगर ये पूछा जाए आपसे सो प्लांट्स तो वेजिटेबल्स खाएं दैट्स द रीजन दे प्रमोट इट सो ऑफन और अगर essential fatty acids की deficiency है in people who are not consuming plants or in the words who are not consuming उनका बस यही है कि अच्छा ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं but वो vegetables खा ही नहीं रहे right so people who are not consuming veggies and plants तो उनमें होगी essential fatty acid deficiency though this is not very common ये थोड़ी rare होती है ठीक है तो it can result in a dry scaly dermatitis तो dermatitis is basically inflammation of the skin जिसमें ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है बिकॉज द बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दैट प्रोवाइड द वाटर बैरियर इन द स्किन तो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स बन ही नहीं रहे तो बॉडी वो वाली मॉलिक्यूल्स बना ही नहीं रही जो वाटर बैरियर प्रोवाइड करते हैं स्किन को तो उस केस में डर्माटाइटिस हो जाता है तो डर्माटाइटिस जब भी किसी को हो आप देखो तो आपको फौरन इट विल क्लिक इनटू योर माइंड कि ओह दीस पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग द
रिक्वायर्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स जो बॉडी को चाहिए होते हैं कौन कौन से हैं? लिनोलीक और लिनोलिनिक। तो वापस से लिनोलीक एंड अल्फा लिनोलिनिक, ये ओमेगा 6 है, ये ओमेगा 3 है, तो उन्हें ये वाले अंडे रिकमेंड किए हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 खाया करें जिनको भी डर्मेटाइटिस हो। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो अटैच सपोर्ट ऑफ डर्मेटाइटिस टू सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो जिन्हें भी डर्मेटाइटिस हो उन्हें ये रिकमेंड कर दें, और अगर उसके पास अगर उनको डर्मेटाइटिस है और उनके मतलब इसकी डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली उनके एरिकिडोनिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि लिनोलीक ही तो एरिकिडोनिक एसिड बन रहा है, और एरिकिडोनिक की डेफिशिएंसी होगी तो उनके प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बन रहे होंगे और उनकी इन्फ्लेमेशन वाला पूरा मैकेनिज्म भी नहीं चल रहा होगा। तो एक चीज़ से कितने मसले आगे हो सकते हैं, सो दैट्स लाइक वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब एरिकडोनिक एसिड ये वाली डायग्राम लेट्स नॉट मिस इट आउट, ये भी देख ही लेते हैं इसमें क्या है। एरिकडोनिक एसिड 24, ओह या आई डिडंट टीच यू हाउ टू रीड दिस। तो इसका मतलब होता है जैसे 24 लिखा है ना, इसका मतलब है कि 20 कार्बन है इसमें और जो 4 डबल बॉन्ड्स, और 4 डबल बॉन्ड्स कौन सी लोकेशन पे? एक फिफ्थ पर, तो ये फिफ्थ और सिक्स कार्बन के बीच में, ये 8 और 9 के बीच में, ये 11th और 12th के, ये 14th और 15th के, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। Yes. So has four double bonds between 5 to 6, 8, 9, 11, 12, and 14 and 15. उसके बाद arachidonic acid is an omega 6, वो हमें पता चल गया fatty acid because the first double bond from the omega end is 6 carbons from the end. So first double bond, so first and then there are 4 carbons, so 4 5 and this is the 6th carbon, और ये 4 इसमें आ गया ना, so 6 carbons from the terminal end. It is also referred to as an omega N6 fatty acid because the last double bond from the carboxyl end is 14 carbons from that end. So it's 20 minus 14 is equals to 6. Yeah, so N16 also you can refer it to as. क्योंकि N6 सॉरी, क्योंकि अब वही बात होगी ना, ओमेगा 6 वाली आप N6 भी लिख सकते हो। तो yeah, that's pretty much it. जो आगे वाली fatty acid synthesis that we'll cover in the next lecture. अभी this was, I wanted to make it really brief and to the point, but अब मुझे लग रहा था it's super important for you to understand fatty acid में basically इतनी importance क्या है। तो अभी देखो you covered this clinical और उसकी थोड़ी सी chemistry भी समझ आ गई। Basics एक बार थोड़ी समझ आ जाए ना कि अच्छा इनको read कैसे करना है, अच्छा इतनी बार ये repeat कर लिया at least ये तो याद हो ही गया होगा, and this is also super important for you to memorize। उसके बाद एक किंग वाली बात भी चलो पता चल गई, गुड फॉर यू इफ यू नो इट। और सिस होना चाहिए, इसका डबल बॉन्ड यूजुअली सिस ही होता है। उसके अलावा 20 से ज़्यादा वाले कार्बन ब्रेन में देर फाउंड, 22 से ज़्यादा वाले कार्बन वाले फैटी एसिड्स, और बॉडी में यूजुअली इवन नंबर वाले होते हैं। फिर ये बाकी बातें पता चल गई, और यहाँ से आई टोल्ड यू कि एल्बुमिन में दे आर ट्रांसपोर्टेड, और फिर ये वाली बात कि फास्टिंग में ग्लूकोज कम होता है तो फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, और ओरिजिन वगैरह दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, गुड फॉर यू इफ यू नो। दिस वाज सुपर इम्पोर्टेंट कि लिवर और मसल में फ्री फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, और लिवर में वो एसिटाइल को में कन्वर्ट करता है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो कीटोन बॉडी की सिंथेसिस में काम आता है, और मसल में फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। So yes, this was the summary of the entire topic. Sorry, not the entire chapter, but the entire topic that we're talking about. ये जो basic structure है उसका और इसकी basic physiology. And yes, that's about it.